Hello everybody, welcome to Mega Discourse, and in this video we would be discussing 30 plus questions. Those will be based on the English in India and research methodology, right? So this is the last video of our set series, and as we know that MP set examination is approaching. However, these questions will include questions from different sets, right? So you all know about our series really well. So let us just start our video directly. So we have our first question जो है, when a student learns a second language at the expense of their first language. So second language that we have is L2 भी जिसको हम बोलते हैं. So when a student learns a second language but at the cost of the first language, that is L1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, right? So our answer would be subtractive, right? क्या होगा आंसर? सबट्रैक्टिव. इसमें क्या होता है, दैट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे देर इज़ अ चाइल्ड एंड ही वॉन्ट्स टू लर्न लैंग्वेज टू a second language. So what will happen? He will forget his or her own language first. We can say a native language, right? So यहाँ पे कहा होगा उसकी जो knowledge होगी that will get subtract. एक तरह से knowledge जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी. So क्योंकि वो at the cost of first language, वो दूसरी language को सीख रहा है, राइट. सो दिस इज द सबट्रैक्टिव लैंग्वेज. और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी एडिटिव लैंग्वेज. सो इन एडिटिव लैंग्वेज में क्या होता है, ही विल मेंटेन अ कंसिस्टेंसी इन बोथ द लैंग्वेज. वो इक्वालिटी रहेगी जहाँ पे ही वुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू L1 एंड L2. कोऑर्डिनेटेड लैंग्वेज में क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड लैंग्वेज में ही विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दैट पर्सन विल ट्राई टू ट्रांसलेट. ठीक है, वो अपने दिमाग के अंदर इन हिज और हर माइंड देयर वुड बी टू सेपरेट स्टोरेज, दो सेपरेट स्टोरेज रखता है L1 एंड L2 की. ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा इसके अंदर. उसके अंदर जो दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक हार्मनी नहीं देखने को मिलती है. कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में ही वुड बी एक तरह से हार्मनी आपको देखने को मिलती है उसके दिमाग में. यहाँ पे वो एक ट्रांसलेशन को यूज़ ना करके व्हाट ही विल डू, वो ही विल नॉट लुक एट द टू लैंग्वेजेस. उसे ये दोनों लैंग्वेज एक ही लगते हैं क्योंकि हिज माइंड इज़ वेरी मच फेमिलियर विद बोथ द कॉन्सेप्ट्स, राइट. ही नोज दैट एप्पल को हम सेब भी बोलते हैं, राइट. सो दिस इज नोन एज कंपाउंड लैंग्वेज, राइट. Let us move to question number 2. In the question number 2 we have, who is the author of An Era of Darkness, the British Empire in India? So the answer would be शशि थरूर. शशि थरूर ने इस बुक को पब्लिश किया था एंड दिस इज द नेम बाय विच ही हैज़ पब्लिश दिस बुक इन इंडिया. हाउएवर इन द UK he has published the same book by Inglorious Empire. Okay, you have to remember this name, Inglorious Empire, right? Similarly, when we look at the other options, Pankaj Mishra, we should know that Pankaj Mishra एक essayist है, ठीक है. He has also written some novels. And then we have Arundhati Roy, who is very famous for The God of the Small Things, and she is also Booker Prize winner. यहाँ पर रोमिला थापर कौन है, she is a veteran historian है इंडिया की, ठीक है. and she has written a history of India. Why I am telling you all the options, क्योंकि ये options, these options can be in your next examinations, so you can take the help of this video by eliminating, right. Then we have question number 3, that is, who is the author of Rethinking English Essays in Literature, Language and History? So here the answer would be Swati Joshi, right. Now who is Swati Joshi? She is a contemporary educator. She also talks about the children stories and poetries, right. We should know about this thing. And she is very famous for leaves of different trees. She is very famous for this work, so you have to remember this fact. And she is a Gujarati poet, right. When it comes to the other options, for instance, we have P. Lal is the founder of our writers workshop, right, which came in Kolkata, right. Writers workshop किस लिए थी? It was meant to be a platform for Indian writers who write in English. इसके members कौन कौन थे writers workshop के, प्लीज़ उसको ज़रूर देख के जाना. Then we have R. Parthasarathy. Now R. Parthasarathy कौन है? He is actually Rajgopal Parthasarathy and he is very famous for Rough Passage. ये एक इनकी poem है. It is a kind of long poem of R. Parthasarathy. And when it comes to him, we should know that he has translated what? He has translated Silapati. Well, I do not know the exact pronunciation of this word, right? क्योंकि ये तमिल, I guess एक तमिल language से है.
सो दिस इज द तमिल एपिक, और इसका रियल ट्रांसलेशन क्या है? द टेल ऑफ एन एंकलेट, राइट, द टेल ऑफ एन एंकलेट. सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट. देन वी हैव गोपी कटूर का हमें क्या याद रखना है? ये भी एक इंडियन पोइट है, एंड इन्होंने एक जर्नल लिखी थी. ही फाउंडेड अ जर्नल जिसका नाम था पोइट्री चेन. Let us move to another. Mango Shuffle is an adaptation of Mahesh Dattani's play. So here the answer would be On a Muggy Night in Mumbai, right? Mango Shuffle इसकी 2002 में एक फिल्म भी आई थी, right? And this is Mango Shuffle is महेश दत्तानी का जो ये प्ले है ये एक होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है. सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो. महेश दत्तानी के और भी वर्क्स हैं. फॉर इंस्टेंस वी हैव तारा एंड फाइनल सॉल्यूशंस विच इज़ बेस्ड ऑन पार्टीशंस के ऊपर. Then we have the Rajaji story, A Warrior from the South. Now this was written by, so here the answer would be Rajmohan Gandhi. Who is Rajmohan Gandhi? Well, Rajaji story जो है ये किसके ऊपर लिखी है? ये बायोग्राफी है ये एक, ठीक है. दिस इज द बायोग्राफी ऑफ सी राजा गोपाल. कौन है वो? ही इज द लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, right? So you have to remember. And Raj Mohan Gandhi कौन है? He is the grandchild of Mahatma Gandhi. We should know. Then we have Masti Venkateshwar Iyengar. So इनके बारे में we should know. He belongs to Kannada literature. So this might be the question of KSET. And he is also Jnanpith awardee. Then we have Chalapathy Raju. Now he has written works on Jawaharlal Nehru, right? He has written Jawaharlal Nehru life and works, right? And he also advocates for the press के लिए. He also advocates for the freedom of press, right? Then we have B.R. Nanda के बारे में you should know. She has also written works on Jawaharlal Nehru and Gandhi, and she has written a work which is Gokhale. Historian है, biographer है, ठीक है, and पद्मा विभूषण अवार्डी है. When was the writers workshop founded by P. Lal? Now again a question, repeated है ये. So here the answer would be 1958, right? You have to remember कहाँ पे था ये? कोलकाता में था. Founder कौन था? P. Lal. Then we have next question, which is which play of T.P. Kelasam deals with Eklavya's decision to join Kauravas? So T.P. Kelasam कौन है? He belongs to Kannada literature, and he has written this work that is fulfillment, ठीक है, fulfillment, and that is based on एकलव्या's decision to join Kauravas. एकलव्य ये कहाँ पे? हमारे महाभारत में एक करेक्टर है. एकलव्य कौन है? he is the student of Guru Dronacharya, right? So please remember this fact. Then we have Dash was a piecemeal verse top biography hailed as the first book of the first Parsi. So here the answer would be the Indian Muse in English garb, right? And this is actually written by Behramji Malabari. 1876 में he has written this work. ये एक verse autobiography है, ठीक है. You have to remember this is the first book of the first Parsi भी इसको बोला जाता है, ठीक है. एंड बेसिकली ये एक गुजराती है ये, ठीक है, गुजराती ओरिजिन है इनका. लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन. द रॉयल एस्केटिक एंड द हिंद वॉज रिटन बाय. तोरुदत्त कौन है? इंडियन, ये भी हमारी एक पोइट है. नाउ शी हैज़ रिटन एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स, एंड शी इज़ नोन फॉर क्लासिफाइंग इंडियन मिथ्स को शी रिप्रेजेंट्स इन द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? विष्णु पुराण. So please remember this fact. Then we have Sarojini Naidu, very famous, and she is known as the Nightingale of India, right? And Manmohan Ghosh है, ये कौन है? He is the elder brother of Aurobindo, right? ये भी एक poet है. And then we have Derozio भी हमारे Indian poet है. Then we have, according to Orientalists, the expression learned natives could mean persons cultivating knowledge of language and literature. So here the answer would be, so who are Orientalists? First of all we should know Orientalist कौन होते हैं. So Orientalist जो होते हैं, Orientalists are the people who supports the native language. So according to them learned natives कौन है? Those who have the knowledge of English, of language and literature. किस subject में, किस language में? So this would be Sanskrit, Persian and Arabic, right? So this would be, according to them, these were the learned natives, those who have the knowledge of Sanskrit, Persian and Arabic. The other options we have English, जो आ ही नहीं सकता है ना. English, Orientalist never talks about the English and they do not support English, तो वो उनको learned natives भी क्यों कहेंगे. All of the following together drafted the first blueprint on English education except. तो कौन? एक्सेप्ट मतलब नॉट का एक तरह से क्वेश्चन आ गया, किसने नहीं किया,
So the answer would be Thomas Babington Macaulay, right? Because William Wilberforce है, Jerry Macaulay हो गया, Charles Grant हो गया, they kind of contributed in drafting the first blueprint on English education, but Thomas Macaulay did not, and he is very famous for a statement जो क्या थी. He wanted to create a class of persons who would be Indian in blood and color, but English in taste and in opinions, right? So this is the thing that you have to remember. Then we have dash give the idea of three concentric circles. Very important question. Three concentric circles जो थे of the spread and use of English. So who gave this idea? So here the answer would be this B.B. Kachru. B. Kachru ने three concentric circles दिए थे. In the book Three Circles of English, right? जिसके अंदर जो first circle होता है वो कौन सा होता है? It is the inner circle, right? Inner circle में we have the countries like we have USA, UK, राइट, जहाँ पे इंग्लिश जो होती है वो एक तरह से प्राइमरी लैंग्वेज होती है. वी हैव द सेकेंड सर्कल जिसके अंदर वी हैव द आउटर सर्कल. यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? जहाँ पे इंग्लिश एक सेकेंडरी लैंग्वेज का काम करेगी. इन दिस वी हैव इंडिया एंड द कंट्रीज लाइक नाइजेरिया. एंड देन इन द थर्ड सर्कल वी हैव जहाँ पे एज अ फॉरेन लैंग्वेज ही देखा जाता है इंग्लिश को, राइट. इंग्लिश इज नॉट ट्रीटेड एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज. फॉर इंस्टेंस वी हैव तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग में सर्कल में कौन सी आएगी? जैसे कि वी हैव चाइना, रशिया. This MLTQ is related to ELT, right? English Language Teaching, and he supports कि हमें multilingualism class में follow करना चाहिए. एस प्रभु भी he is related to the TBLT. What is TBLT? That is Task Based Language Teaching, right? That English language should be taught, जिसके अंदर हम कैसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, दैट इज टास्क बेस्ड. एंड देन वी हैव डेविड क्रिस्टल इज ऑल्सो अ लिंग्विस्ट. द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन. सो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सा आता है? दैट देयर शुड बी थ्री लैंग्वेजेस. फॉर इंस्टेंस वी हैव फर्स्ट दैट इज रीजनल लैंग्वेज, सेकेंडली they should be taught English language, and the third they should be taught Hindi language, right? And इस three language formula को लेकर we still have many controversies, right? Because the southern states are not accepting this thing, because एक तरह से what we are doing, we are homogenizing, एक तरह से homogenize कर रहे हैं. इंडिया में हर जगह हिंदी को एक तरह से प्राइमरी बनाना, that is the issue. Okay, so three language formula कब लागू हुआ था? So basically it came in 1968 with the NEP, New Education Policy of 1968. Which of the following are the three factors that greatly influenced in the notion of Indian English? So कौन से तीन factors थे जिसने influence किया Indian English के notion को? Nationalist sentiments को जो favor करते हैं linguistic nationalism को. So yes, because हमारे पास we should have our own variety of English, इसलिए Indian English को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए linguistic nationalism आगे आया था, है ना. एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे दैट यस वी इंडियंस शुड ऑल्सो हैव आवर ओन वेराइटी ऑफ इंग्लिश, दैट इज इंडियन इंग्लिश, राइट. ये फेवर करते थे लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को. देन वी हैव जस्टिफिकेशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव इंडियन वेराइटी ऑफ इंग्लिश, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन वी हैव ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल linguistics and dialectology. So according to these structural linguistics and dialectology, इसका मतलब क्या होता है? that no dialect is wrong. No. तो अगर इंडिया अपनी खुद की एक डायलेक्ट रखना चाहती है इंग्लिश की, राइट, सो दिस इज करेक्ट एंड दे कैन हैव देयर ओन, राइट. एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर्स वांटिंग रिकॉग्निशन, सो नो दिस वाज नेवर अ कोज जिसकी वजह से हम इंडियन इंग्लिश को बढ़ावा देंगे, राइट. सो 1 2 3 1 2 and 3, so A would be the answer. Who critically analyzed the political and cinematic career of MGR in The Image Trap? MG Ramachandran in Film and Politics. So MSS Pandyan will be the answer, because he has written this work that is The Image Trap, जहाँ पे he tells कि किस तरह से MG Ramachandran ने अपनी एक इमेज बनाई थी, राइट. एंड उस इमेज को उन्होंने क्रिएट करके क्या करा? he entered into the politics. सो दिस इज़ द थिंग. एंड ये कहाँ की पॉलिटिक्स में इन्होंने एंटर किया था? तमिलनाडु की. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द अदर ऑप्शंस, वी शुड नो कि जो हमारे आशीष नंदी हैं, दिस आशीष नंदी जो हैं, ही इज़ अ पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड सोशल थियोलॉजिस्ट भी हैं. एंड ही हैज़ रिटर्न दिस इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज़ द इंटीमेट एनिमी. ओके, यू शुड नो दिस. MN श्रीनिवास हैं जैसे, वो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, and he has introduced the concept of Sanskritization and the other concept of dominant caste,
राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग. देन वी हैव सुधीर काकर. तो यू शुड नो कि ये भी एक साइको एनालिस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic feature of Indian English? So tell me. So here the answer would be rhotic pronunciation. Well, rhotic pronunciation क्या होती है? Rhotic pronunciation is the जब आप words के end में क्या लगाते हो? R. If you are pronouncing R sound at the end of the words after the consonants we can say, तो वो क्या होती है? Rhotic pronunciation. वो होती है rhotic pronunciation. But we Indians do not have this characteristics, right? But वो हम नहीं pronounce करते क्योंकि we have the pronunciation of RP, received pronunciation हमने UK की उठाई हुई है, right? But in the USA में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. वहाँ पे rhotic नहीं होती, right? So we Indians do not have this rhotic pronunciation. ठीक है. So please remember this thing. प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ा होगा नहीं आपने. प्रोग्रेसिव टेंस का बार बार यूज़ करना, ING को बार बार लगाना. देर इज़ ऑल्सो पोएम ऑफ नज़ीम एजिकल इन विच ही मेक्स फन ऑफ इंडियंस कि वो कितना प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. फाइटिंग, नोइंग, वॉकिंग, डांसिंग, आई एम प्लेइंग, इस तरीके से उनकी कभी यू विल इफ़ यू रीड द पोएम्स ऑफ नज़ीम एजिकल यू विल फाइंड देम रियली फनी, बट दे हैव एन आयरनी एंड सटायर. ओके. And then we have the policy that recommended English as a link language in India is known as. So कौन सी policy थी? So here the answer would be NEP 1986, right? Link language कौन सी होती है? That it would work as a medium of instruction between these states. ठीक है. इसे हम link language बोलते हैं. Though how will state will link and communicate with each other. और ये वर्धा स्कीम है, बेसिक एजुकेशन स्कीम है, ये गांधी की है. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की हमने अभी बात करी थी. ठीक है. नाउ वी हैव क्वेश्चंस ऑन द रिसर्च यूनिट, राइट? रिसर्च यूनिट में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. सो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? कौन सा होता है? दैट द डेटा दैट वी कलेक्ट फ्रॉम द अदर पीपल. जैसे कि प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा में हमारा फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होगा, ठीक है. इट कुड बी ए क्वेश्चनेयर हो गया, डायरेक्ट हम सर्वे करते हैं, हम डायरेक्ट किसी लेटर को पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोई इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी डेटा रहता है. बट सेकेंडरी डेटा में क्या होगा? सेकेंडरी डेटा में हमारा होता है जैसे कि गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होगी, ठीक है, रिसर्च जर्नल्स हो गए, हमने कोई बुक पढ़ी है उनके बारे में, ठीक है, सेंसस की रिपोर्ट्स होगी जो हमने दूसरे सोर्सेज से ली हैं उसके बारे में, राइट. सो नॉट अ सोर्स कौन सा है यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का? तो क्वेश्चनेयर्स, क्योंकि क्वेश्चनेयर्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं हमें एक तरीके से, ठीक है, क्वेश्चंस को पूछना डायरेक्टली. Which of the following sampling techniques gives every unit an equal weightage of chance of selection? So what would be the answer? जैसे कि हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड में हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेटास के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, है ना. तो अगर हम मान लो ये सारे बहुत सारे लोग हैं और अगर आई एम मेकिंग द ग्रुप्स, मैंने इनका ग्रुप बना दिया, मैंने इनका ग्रुप बना दिया, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यहाँ पे इक्वल चांस मिले सिलेक्शन का. इट माइट बी पॉसिबल कि मैं एक ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस दूं, तो इसके अंदर तो इक्वल सिलेक्शन का चांस नहीं आता. देन वी हैव पर्पसिव सैम्पलिंग. इसके अंदर आई विल डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, कि इनका ये पर्पस है, उनका ये, तो इसके अंदर भी इक्वल चांस का नहीं बनता. देन वी हैव कन्वीनियंस सैम्पलिंग. इसमें तो नाम ही क्या लिखा है? कन्वीनियंस. तो कन्वीनियंस के हिसाब से इफ़ आई विल डिवाइड द यूनिट्स, तो उसके अंदर भी इक्वल चांस नहीं बनेगा क्योंकि आई विल सेलेक्ट दोज पीपल जो कन्वीनियंस के हिसाब से होंगे, ठीक है. देन वी हैव सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा? आई कैन चूज एनी पर्सन. तो इसके अंदर कोई भी आ सकता है, देयर वुड बी नो बायसनेस. तो यहाँ पे क्या होगा? एक इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलता है, ठीक है. सो दिस वुड बी दी आंसर. फीलिंग्स ऑफ बोथ द न्यू एंड द ओल्ड ऑटोबायोग्राफी इज. सो ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज कब फेल होती हैं? व्हेन डू दे गेट फेल्ड? दे विल गेट फेल्ड व्हेन देयर वुड बी पार्शियलिटी, ठीक है, एंड एक्सक्लूजन, ठीक है. पार्शियलिटी में देयर वुड बी सम डेटा जो रह जाएगा. एक्सक्लूजन में क्या होगा? कुछ देयर वुड बी सम डेटा जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे. एक्सक्लूजन में कुछ ऐसा डेटा होगा जिसको हम जानबूझ के इंटेंशनली छोड़ देंगे. एंड इंडिविजुअलिस्टिक में क्या होगा? दैट द पर्सन विल बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन दी होल ब्रॉड पिक्चर और जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, बायोग्राफीज़ के अंदर. सो जितनी भी चीज़ें सारी ही की सारी ही फेल कर देते हैं एक पर्पस को, किस चीज़ के, किसी वर्क के ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी होने का. सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव. एथनो मेथोडोलॉजी एंड क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स आर ट्रेडिशंस दैट आर ए पार्ट ऑफ. So here the answer would be discourse analysis, right? Well, this word is made up of ethno plus methodology, ठीक है.
दिस वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू. सो एथनो में क्या होगा, उस स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक कम्युनिटी से, एथनिसिटी से रिलेटेड. ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल एनालिसिस. ठीक है, व्हेन वी लुक एट द सराउंडिंग्स, आवर ओन सराउंडिंग्स, व्हेन वी रिफ्लेक्ट एट आवर ओन एक्सपीरियंसेस. ठीक है, सो वो होता है एथनो मेथोडोलॉजी का एक तरीके से हम एनालिसिस करते हैं. ठीक है, आजकल इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट. फॉर इंस्टेंस इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि इफ़ यू आर सिटिंग एंड देयर इज़ नोबडी इन योर होम, देन यू विल लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे आप खुद से बात कर रहे हैं, एंड यू आर बिहेविंग लाइक द सेकेंड पर्सन. दैट अगर कोई मुझसे बात कर रहा होता तो मैं ऐसा होता, वो मुझे ऐसे देख रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी. दैट मीन्स हम खुद को ही एक तरह से अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, देन वी हैव क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स में क्या होगा, क्रिटिकली लिंग्विस्टिक्स, ये भी एक तरह से लैंग्वेज के अंदर हम क्रिटिकली उसको देखते हैं. तो ये कहाँ से आते हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ डिस्कोर्स की एनालिसिस करना. ठीक है, डिस्कोर्स को एनालिसिस करना मतलब नैरेटिव जो है, नैरेटिव डिस्कोर्स में आ जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है किसी चीज़ का, ब्रॉड पिक्चर क्या है किसी टॉपिक की, जो बातें चल रही हैं उसके बारे में, व्हाट आर दी पावर डायनामिक्स इन दैट डिस्कोर्स. ठीक है, तो ये उसी की पार्ट्स हैं. ठीक है, इन व्हाट ऑर्डर डज द ऑनलाइन कैटलॉग typically display search results when searching by author's full name. So whenever we search the authors, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें सर्च करनी है ऑनलाइन एक कैटलॉग में जो लिस्ट होती है उनकी, ठीक है, तो वट इट वुड डिस्प्ले, जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे तो वो कैसे आते हैं, बाय ऑथर्स फुल नेम. तो दे वुड बी अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, बाय ऑथर्स लास्ट नेम. सो दे वुड बी रिटन लाइक फॉर इंस्टेंस देयर इज विलियम शेक्सपियर, है ना. सो ये नाम है, तो जब आप उसको कैटलॉग में सर्च करोगे तो कैटलॉग में क्या लिखा होगा, कैटलॉग में इट वुड बी अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर्स लास्ट नेम. तो यहाँ पे शेक्सपियर तो पहले आ जाएगा, ठीक है, और कोमा फिर यहाँ पे विलियम आएगा. Which of the following examples demonstrates the correct usage of hyphen and end dashes according to MLA Handbook 9th edition? So, cultural studies approach post-word word second. So, this would be the answer. Let me explain you what is hyphen and end dash. जैसे कि हमारी 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज हाइफन की जो लेंथ होगी, हाइफन की लेंथ रहती है ये इतनी, ठीक है. एम डैश, सबसे पहले एम डैश बताऊंगी. एम डैश क्या होता है, एम डैश इज बेसिकली ये एम है, इसकी जो विथ है तो इस विथ के जितना ही ये होता है एम डैश. और एन डैश क्या होगा, एन डैश इज बेसिकली एन की विथ का ये क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है. इट इज़ स्लाइटली, ये जो एन डैश होता है दिस इज स्लाइटली लॉन्गर देन हाइफर बट शॉर्टर देन एन डैश. सो अब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इसके करेक्ट यूज़ को, हाइफन एंड एन डैश को अकॉर्डिंग टू 9th एडिशन ऑफ MLA बता रहा है. सो दिस वुड बी दी आंसर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा, राइट. तो इसका यूज़ क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो पोस्ट का मतलब उसके बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एन डैश लगा दिया, ठीक है. देन वी हैव वर्ल्ड वार सेकेंड एरा. सो इसको देख सकते, वर्ल्ड वार के एरा, कौन सा, वर्ल्ड वार सेकेंड एरा, और पोस्ट मतलब उसके बाद, ठीक है. तो वी आर कनेक्टिंग दीज टू थिंग्स. सबसे पहले तो यू शुड रिमेंबर, एंड इवन इन दिस वी हैव सो मेनी वर्ड्स लाइक वर्ल्ड वार सेकेंड, और फिर एक और शब्द है एरा, ठीक है. इसको हम बोलते हैं ओपन वर्ड, कंपाउंड वर्ड्स भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है. सो वेन एवर वी आर कनेक्टिंग दिस वन वर्ड विद द अदर वर्ड्स, और इस वर्ड में भी फर्दर बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक ओपन कंपाउंड है ये यहाँ पे, ठीक है. तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम एन डैश का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है, यहाँ पे हाइफन यूज़ कर रखा है ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन डैश है विच इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन हाइफन. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. वेरी इजी क्वेश्चन बट इट कैन बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि एग्जाम में हम पागल हो जाते हैं कभी कभी, हम कॉमन सेंस को नहीं यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी. First we have defined research problem, then we have formulate hypothesis, review of literature, design research, interpret and report, collecting data and analyzing data. ठीक है, तो सब में फर्स्ट तो पहले ही चल ही रहा है, क्योंकि सबसे पहले व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम की प्रॉब्लम रिसर्च में क्या है. सेकेंडली व्हाट वी विल डू, वी विल रिव्यू द रिसर्च. हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे लिटरेचर का. रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि प्रीवियसली द वर्क्स दैट हैव बीन रिटर्न प्रीवियसली उस टॉपिक पे, राइट, वी विल चेक दोज वर्क्स कि उसके अंदर कौन से गैप्स हैं, व्हाट आर दी
फर्दर इन्वेस्टिगेशंस दैट वी कैन डू, ठीक है, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स कि इस टॉपिक में ये गैप है, ये चीज़ पे रिसर्च हो सकता है, तो हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, उसके ऊपर उस टॉपिक पे पास्ट प्रेडिसेसर्स ने जो चीज़ ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी वुड फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक रिसर्च का, वेट अ सेकेंड, नाउ वी विल मेक अ हाइपोथेसिस, जो हमारी रियल प्रॉब्लम होगी, रियल प्रॉब्लम जो हमारा रियल एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है कि हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो वो होगी हमारी हाइपोथेसिस। एंड ऑन द 4th नंबर वी वुड डू रिसर्च, डिज़ाइन रिसर्च, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन रिसर्च, मतलब हमारा क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, ठीक है। अब हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल कलेक्ट द डेटा। अब हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना डेटा लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल एनालाइज द डेटा, है ना, उसको हम एनालाइज करेंगे। और आफ्टर दिस व्हाट वी वुड डू, हम लास्ट में क्या करेंगे, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट, ठीक है। नाउ दिस कैन बी सॉल्व बाय बेसिक, आपको थोड़ा सा दिमाग में कॉमन सेंस लगाना है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को ही डिफाइन करेंगे ना, और ये जो इंटरप्रेट रिपोर्ट करना है तो लास्ट वाला स्टेज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये जो है हमारा ये दिस शुड कम एट द एंड, तो फर्स्ट यहाँ आ रहा है और 5th में लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट करके निकाल। दिस इज द वे हाउ वी रीच टू द राइट आंसर। Dash learners like to manipulate materials and like to build, fix or make things or put things together. So यहाँ पे आएगा काइनेस्थेटिक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो कभी स्टेबल नहीं होती, ठीक है। सो इसी तरह से जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट द मटेरियल, ठीक है। दे विल मेक मैनी चेंजेस एंड दे विल ट्राई टू बिल्ड, फिक्स, मेक थिंग्स, पुट टुगेदर। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, सीखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लर्नर्स को काइनेस्थेटिक लर्नर बोला जाता है, ठीक है। ऑडिटरी इज ऑल रिलेटेड टू द हियरिंग, अथॉरिटी ओरिएंटेड, टेक्टाइल इज रिलेटेड टू द टच, इनका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। सो बेसिकली सी वुड बी द आंसर। What is the best way to expose a word so that students will get clear cut idea about the usage of the word? So best way क्या होता है किसी भी word को समझने का, ठीक है। So the answer would be by doing vocab exercises, ठीक है। drawing painting से हमें word नहीं आएंगे, नॉट इवन दी वर्ड गेम्स तो हम लास्ट में करते हैं, एडवांस स्टेज पे एक तरह से। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दी वर्ड्स, इट्स सम वोकेबुलरी हम बिल्डअप करें, ठीक है। ट्रांसलेशन से भी कुछ नहीं होगा, वो तो हमें L2 से L1 से L2 पे लेके जाएगी, ठीक है। तो वर्ड्स को अगर हमें जानना है तो हमको क्या करना होगा, वी शुड डू बाय डूइंग वोकेबुलरी एक्सरसाइजेस, राइट। वोकेबुलरी बना के, ठीक है, तभी हम वर्ड्स को समझ सकते हैं। हम एंटोनिम होंगे, सिनोनिम जब हमें पता होंगे हमारी, तभी तो वोकैब बढ़ेगी, ठीक है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो आंसर क्या आएगा। सो एथनोग्राफी में क्या होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। पहली बात तो एथनोग्राफी इज़ ऑल अबाउट कि आप उनकी जगह पे जाओगे, लोकल पीपल की, उसकी वी विल गो टू द एथनिक कम्युनिटी, उनकी एथनोग्राफी पे जाएंगे, हाउ दे लिव, व्हाट आर देयर लाइफस्टाइल। फॉर इंस्टेंस अगर हमें किसी ट्राइब के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, हम उनके जगह पे जाएंगे, वी विल ऑब्जर्व देयर लाइफस्टाइल, देयर कल्चर, व्हाट दे ईट, हाउ दे वॉक, हाउ दे टॉक, व्हाट दे वियर, ठीक है। तो उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। देन वी हैव ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, एक तरह से थ्योरी को ग्राउंड करेंगे, ठीक है, थ्योरी बनाते हैं। देन वी हैव केस स्टडी में हम क्या करते हैं, एक केस को उठाएंगे एंड पर्टिकुलरली उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड केस स्टडी में क्या होगा, केस स्टडी जो होती है उसके बारे में हम सारे पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड ये जो तीनों हैं ये सारी ही क्वालिटेटिव हैं, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल जो होती है ये बेस्ड होती है कोज एंड इफेक्ट पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करके सीखा जाता है। यहाँ पे वी विल चेंज दी वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स को यहाँ पे बदलेंगे कि अगर हमने इसको मैनिपुलेट करा तो इसका इस पर क्या असर हुआ, इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा किया तो इस पर क्या असर हुआ। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी को चेक करने वाली चीज़ होती है, क्वांटिटी, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट को चेक करते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। सो थ्योरी बिल्डिंग का काम क्या होता है, बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च करना, ठीक है। सो थ्योरी को बिल्ड करना, वी हैव टू बिल्ड अ थ्योरी, वी हैव टू बिल्ड द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च होगी एक तरह से, ठीक है। तो यही इसका पर्पस होता है थ्योरी बिल्डिंग का, कि हमें फंडामेंटल रिसर्च करनी है, हमें बेसिक्स को चेक करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी ज़ीरो, ठीक है। थोड़े दिन में वीडियो अपकमिंग नेट एग्ज़ाम की, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना,
ठीक है, बैक फ्रॉम द बेसिक्स आपको कैसे शुरू करना है, ठीक है, इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर और समबडी हु इज़ इन द मिडिल वे, ठीक है। सर्वे रिसर्च है, अप्लाइड इन एक्शन होगी, ये तो सारी क्या करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा, आप चीज़ को उसको अप्लाई करते हो, ठीक है, अप्लाई करके देखोगे उस चीज़ को बार बार, ठीक है। एक्शन रिसर्च में आप एक्शन लेके उस चीज़ पे जाने की कोशिश करते हो। रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल रेफर्स टू इट्स कंसिस्टेंसी, कि एक्चुअली इफ़ वी यूज़ दिस सेम कंडीशंस हो, वी हैव द सेम टूल्स, तो क्या अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट दोबारा करूँ, मैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट दोबारा करूँ, सो वुड इट गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो रिलायबल है, ठीक है, क्या वो कंसिस्टेंट रहेगी क्या इन सब चीज़ों के अंदर अगर हम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिलायबल। अगर वो चीज़ कंसिस्टेंट है कि हाँ फर्स्ट में भी उसने यही रिजल्ट दिया, सेकंड बार भी यही रिजल्ट दे रही है, इवन इन द थर्ड इट इज़ गिविंग द सेम रिजल्ट, दैट मीन्स इट इज़ बीइंग कंसिस्टेंट और वो एक रिलायबल है, ठीक है। रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है कि वो क्या एक्यूरेट में वही चीज़ रेलिवेंट है या नहीं, वो सही है कि नहीं, क्या हमें वो चीज़ करनी भी चाहिए या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं, यूनिवर्सल है या नहीं हर चीज़ पे, ठीक है। An experiment to test comprehension device by Fraser, Balaji and Brown in 1963 is the, so here the answer would be VCP test, ठीक है, that is verbal comprehension production, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो किसने बनाया था, फ्रेजर, बैलेजी एंड ब्राउन ने 1963 में, ठीक है। किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट द कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ बेसिकली टू टेस्ट हाउ चिल्ड्रन एक्वायर्स लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। केस स्टडी मेथड इज मेनली यूज्ड इन, सो आंसर क्या है, सो आंसर वुड बी क्वालिटेटिव रिसर्च, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ सीखते हैं, ठीक है। वी विल कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड देन विल चेंज एंड देन विल लर्न, ठीक है, फिर चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से ये रिसर्च होती है। सर्वे में हम सर्वे करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्काइव्स हो गए, कोई मैगजीन जर्नल्स हो गए पुराने, उनको जाके पढ़ते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से हमारी रिसर्च होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द लक फॉर योर एग्जाम एंड आफ्टर दिस 1 या 2 दिन का ब्रेक लेके हम अपने UGC नेट जून 2026 की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।